Good morning, students. My name is Simran Arora, Assistant Professor, Department of BCom from IIMT College of Management. In this video, we are going to study about accounting for GST, Goods and Service Tax. Let's start our video. Okay, before learning what is GST, let's learn what is tax. So tax is an mandatory charge which is charged by the government from any registered taxpayer person or an individual living in this country, right? So it's a mandatory charge, or it is, and we can call that it is a revenue for the government, right? So there are two types of tax. So first one is the direct tax. What is direct tax? The one on whom tax is levied will be the one who will pay the tax, right? That's the same person. So the example of direct tax is the income tax and the wealth tax. As the person who's earning the income, the tax will be levied on the same person, and that person will directly pay the tax to the government. And what is an indirect tax? So indirect tax is the tax on which it is levied, and from it is collected is the other person. So let's take an example. Suppose you are a supplier and you are selling goods and services to a person, and while selling, you are collecting some tax from the customer, and you are the one who's collecting the tax and paying it to the government on behalf of the customer. The customer is the one on whom the tax is levied, and you are the one who is paying the tax to the government. That's a kind of indirect tax. So there are two types of indirect tax now, GST or custom duty. Now let's learn. In this video, we are going to study about just the GST. So GST, as the name or the full form suggests, goods and service tax. So it is the tax which is levied on goods and services, right? So, and also it is an indirect tax which has replaced many indirect tax in India, such as excise duty, VAT, service tax, octroi duty. So there are many tax which were used to be applied first by the center or the state government. Now these all are subsumed under the GST only. So this GST came into effect on 1st July 2017. Okay, let's study. There are some taxes at central level and state level which are now subsumed under GST. They no longer exist. Only GST is applied on goods and services. So like the central excise duty tax, service tax, countervailing duty, or the surcharges, and some state tax also, VAT, sales tax, purchase tax, octroi duty. These all taxes are now no longer exist. They are all comes under now GST Acts. So let's understand what's the scope of GST, why government has bring the GST. So the first one is, it's saying that it removes the cascading effect. You know what's the cascading effect? Cascading effect is tax on tax. Let's understand this also with the example. Suppose you have purchased, or you have a bakery and you have purchased a bread. Okay, so the bread charges 10 rupees and 1 rupee is GST over it, or a tax over it. Okay, so now you have paid 11 rupees for the bread, and you made a cake out of it, and you are selling the cake for, suppose, 100 rupees, right? So that 100 rupees also include the 1 rupee of the tax, right? So it includes the 11 rupees, 10 rupee of the bread, and 1 rupee of the tax also. Now you will apply the tax on 100 rupees. So you are charging the tax on 1 rupee also. So this was the effect, this was the cascading effect when we don't have GST. Now under GST, we'll remove the 1 rupee. The input credit is given by the government back, and now you will charge GST only on the 99 rupees. 1 rupee is removed from it. Okay, so it has also helps to remove the cascading effect. And yes, next one is, let's study bring uniformity in tax structure. जीएसटी की वजह से ही वन नेशन वन टैक्स का जो हमारा ड्रीम है, या जो ये सक्सेसफुल हो पाया, इसकी वजह से, क्योंकि बहुत सारे जो टैक्स पहले पे करने पड़ते थे वो सब सम होके किसमें आ गए, सिर्फ जीएसटी में आ गए. तो अब एक सिंगल टैक्स एग्जिस्ट करता है जीएसटी, जिसको पे करके एक यूनिफॉर्मिटी आ गई है, हर जगह एक यूनिफॉर्मिटी डेवलप हो गई है, एंड इसकी वजह से कॉम्प्लायंस भी काफी इजी हो गया है, एंड ड्यू टू जो हमारी फाइनल कॉस्ट है वो कम हो गई है, उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो गई है, एंड इट हैज आल्सो प्रोवाइड्स अस ट्रांसपेरेंसी. हाउ? तो टैक्स इवेजन करना काफी डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि अगर आपको इनपुट क्रेडिट वापस लेना होता है, गवर्नमेंट से रिटर्न फाइल करना होता है, तो आपको सप्लायर का सारे इनवॉइस शो करने होते हैं. इन केस सप्लायर के पास कोई इनवॉइस नहीं है, या तो उसने टैक्स पे नहीं करा, या फिर वो रजिस्टर्ड ही नहीं है,
तो आप रिटर्न क्लेम नहीं कर सकते हो। तो इस वजह से इविजन करना काफी डिफिकल्ट हो गया है, टैक्स आप इवेज नहीं कर पाते हैं। और सिंप्लीफिकेशन हो गई है टैक्स की, क्योंकि अब इजी है। पहले आपको बहुत सारे एक्ट और बहुत सारी चीजों को कंसीडर करना पड़ता था, टैक्स को कंसीडर करना पड़ता था। अब सिर्फ आप जीएसटी पे करके सिंप्लीफिकेशन हो गई है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आ गया है इसकी वजह से। सो दीज आर सम स्कोप ऑफ जीएसटी। नाउ लेट्स स्टडी सम कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी। ओके, सो जीएसटी हमने पढ़ा, जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई गुड्स एंड सर्विस में हम ट्रेड कर रहे हैं, तो हम जीएसटी पे करते हैं या फिर कलेक्ट करते हैं, राइट। तो अब एक सिचुएशन ये है कि आप यूपी में रहते हैं और आप यूपी के ही किसी पर्सन से ट्रेड कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। उस केस में दो टैक्स चार्ज होते हैं, कौन से, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी क्या है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड एसजीएसटी क्या है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऐसा क्यों दो टैक्स क्यों लगते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारी गवर्नमेंट कैसी है, फेडरल गवर्नमेंट है। तो इस वजह से जो हमारी गवर्नमेंट ने कैसा सिस्टम अडॉप्ट किया, ड्यूअल या फिर कॉन्करेंट मॉडल अडॉप्ट किया, क्योंकि फेडरल सिस्टम में गवर्नमेंट दोनों लेवल पे डिवाइडेड होती है, स्टेट एंड सेंट्रल लेवल। तो इस वजह से जब आप एक ही स्टेट में ट्रांजेक्शन करते हैं तो दो जीएसटी लगता है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। जब आप दो स्टेट के बीच में, जब आप एक स्टेट के बीच में करेंगे तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा, और जब एक ही स्टेट के, दो स्टेट के बीच में करेंगे तो आईजीएसटी लगेगा। सपोज आप यूपी में रहते हैं और आप हरियाणा के किसी पर्सन से आप परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो आईजीएसटी चार्ज। ओके, ठीक है। तो जब एक ही स्टेट में तो दोनों चार्ज होंगे, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। जब दो स्टेट में होगा तो आईजीएसटी चार्ज होगा। अब एक चीज और समझते हैं, इनपुट एंड आउटपुट ये क्या है। सपोज आप जब कुछ, जीएसटी पेड कब होता है, आप जब गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, जीएसटी अमाउंट पे करेंगे, राइट। तो जब हम जीएसटी अमाउंट पे करते हैं तो कौन सा अकाउंट खुलता है, इनपुट जीएसटी अकाउंट खुलता है। और इनपुट जीएसटी अकाउंट कौन से नेचर का है, असेट नेचर का है। व्हाई इट इज ऑफ असेट नेचर, क्योंकि ये एक ऐसा टैक्स है जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो जब हम परचेज करते हैं या फिर आप कोई भी एक्सपेंस के लिए अमाउंट पे कर रहे हो, तो उस केस में कौन सा खुलेगा, इनपुट जीएसटी खुलेगा। जब हम जीएसटी पे कर रहे हैं कोई सर्विस लेने के लिए या फिर कोई गुड्स लेने के लिए, जब हम जीएसटी पे करते हैं तो इनपुट जीएसटी खुलता है। और ये कौन से नेचर का होता है, असेट नेचर का होता है। अगर एक ही स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन है तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी खुलेगा, और अगर दो स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन है तो इनपुट आईजीएसटी खुलेगा, जिसे हम इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, राइट। अब जीएसटी कलेक्टेड, सपोज आपने सेल करी गुड्स की, राइट, तो आप कस्टमर से क्या कर रहे हैं, जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं। जब हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं किसी पर्सन से, तो वो कौन सा अकाउंट खोलते हैं, तब हम आउटपुट जीएसटी अकाउंट खोलते हैं, ठीक है। और ये कौन से नेचर का होता है, लाइबिलिटी नेचर का होता है, क्योंकि ये एक ऐसा अमाउंट है जो आपने कलेक्ट किया है, किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे। अब ये आपको गवर्नमेंट को पे करना है, तो ये आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी है, ठीक है। तो इनपुट जीएसटी खुलता है जब हम पे करते हैं, आउटपुट जीएसटी खुलता है जब हम जीएसटी का अमाउंट कलेक्ट करते हैं। और सेम अगर एक ही स्टेट में है तो सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी दोनों खुलेगा, और अगर दो स्टेट में है तो आउटपुट आईजीएसटी अमाउंट। क्लियर, एक बार और रिपीट करेंगे, जीएसटी पेड तब खुलता है, जीएसटी इनपुट जीएसटी कब खुलेगा, जब आप जीएसटी का अमाउंट पे कर रहे हैं कोई भी गुड्स एंड सर्विस लेने के लिए, परचेज के समय पे या कोई भी एक्सपेंस के समय पे। आउटपुट जीएसटी जब खुलता है जब आप जीएसटी का अमाउंट कलेक्ट करते हैं। इनपुट जीएसटी असेट है, आउटपुट जीएसटी हमारे लिए लाइबिलिटी है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम अकाउंटिंग एंट्रीज से, ठीक है। मैंने आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इधर हम समझेंगे लेफ्ट साइड पे इंट्रास्टेट और राइट साइड पे हमारी है इंटरस्टेट। इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन जब एक ही स्टेट में हो रही है, यूपी की यूपी में ही होगी, इंटरस्टेट जब यूपी की हरियाणा से हो रही है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपने फिक्स एसेट या फिर गुड्स परचेज करा। सपोज आप फिक्स एसेट परचेज कर रहे हैं, हम सब जानते हैं जब हम फिक्स एसेट परचेज करते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट होता है, क्योंकि वो असेट अकाउंट है, राइट। तो फिक्स एसेट अकाउंट होगा डेबिट, और अगर इनकेस जीएसटी नहीं है तो एंट्री क्या होती है, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अगर आपने पैसा नहीं पे किया है तो क्रेडिटर अमाउंट खोल देंगे, और अगर पैसा पे कर दिया है तो कैश अकाउंट खोल देंगे। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, फिक्स एसेट टू क्रेडिटर टू कैश। अब जब जीएसटी है, इस केस में हम जीएसटी अमाउंट पे कर रहे हैं, राइट। जब जीएसटी पे करते हैं तो कौन सा खुलता है, इनपुट जीएसटी अकाउंट खुलता है, और इनपुट जीएसटी अकाउंट असेट नेचर का है, राइट। तो असेट जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट। इसलिए हमने क्या किया, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को डेबिट कर दिया। तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर और कैश अकाउंट।
क्लियर। और इन केस आपने गुड्स परचेज करे हैं तो हम फिक्स एसेट की जगह कौन सा अकाउंट खोलते हैं, परचेज अकाउंट खोलते हैं, राइट। तो एंट्री क्या होगी, फिक्स एसेट अकाउंट या परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर और कैश अकाउंट, राइट। अगर आपने क्रेडिटर मतलब आपने पेमेंट नहीं करी तो क्रेडिटर, कर दी है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा उतने ही अमाउंट से। क्लियर है। ये तो तब थी जब हमने एक ही स्टेट में ट्रांजैक्शन करी है, जब हमने दो स्टेट में करी है। अब यूपी से आप परचेज कर रहे हो, आप फर्नीचर परचेज कर रहे हो सपोज, और आप कर रहे हो हरियाणा के किसी पर्सन, ठीक है। तो एंट्री क्या करेंगे, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, लेकिन आप हरियाणा के पर्सन से कर रहे हैं तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर टू कैश। क्लियर। इनपुट हमेशा खुलता है परचेज या फिर एक्सपेंस के लिए, जब आप अमाउंट पे कर रहे हैं, जब आप टैक्स पे कर रहे हैं तो इनपुट खुलेगा। तो दोनों ट्रांजेक्शन में परचेज हो रही थी तो इनपुट अकाउंट खुला, और इनपुट अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है, क्योंकि यह सेट नेचर का है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट लेट्स कम टू दी सेल्स अकाउंट। सपोज अब आप फिक्स एसेट या फिर गुड सेल कर रहे हो और एक ही उसमें कर रहे हो, एक ही स्टेट में कर रहे हो, तो क्या करेंगे, जब हम सेल करते हैं, सपोज आपने उसका आपको पैसा अभी मिला नहीं है तो हम डेटर अकाउंट खोल देते हैं, और अगर पैसा मिल गया है तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। दोनों में से कोई भी जो भी अकाउंट होगा वो डेबिट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और सेल्स अकाउंट रेवेन्यू अकाउंट है तो वो क्या हो जाता है, क्रेडिट होता है। और आउटपुट ये हम कलेक्ट कर रहे हैं, ये ऐसा जीएसटी है जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है, लाइबिलिटी अकाउंट है, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट। तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और अगर हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं किसमें, दो स्टेट में, हम यूपी से हरियाणा में कर रहे हैं तो एंट्री क्या करेंगे, डेटर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। डेटर इन केस आपके पास अभी मनी नहीं आया है, कैश अगर आपके पास मनी आ गया है। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है क्योंकि वो रेवेन्यू अकाउंट है, और आउटपुट आईजीएसटी हमारे लिए लाइबिलिटी अकाउंट है क्योंकि हमने ये जीएसटी कलेक्ट किया है, राइट। तो ये क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नाउ इट्स परचेज रिटर्न। सपोज आपने गुड्स परचेज करे, अब आपके गुड्स में कोई डिफेक्ट हो गया या फिर कोई भी कंडीशन, अब आपको वो लेट डिलीवरी हुई और आप उस गुड्स को क्या कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, तो आप एंट्री क्या करोगे, परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज अकाउंट होता था डेबिट, तो परचेज रिटर्न अकाउंट होता है क्रेडिट, राइट। तो अब जब हमने परचेज करी थी तो हमने क्या किया था, ध्यान से देखेंगे, इनपुट को किया था डेबिट। परचेज रिटर्न की एंट्री जस्ट अपोजिट होती है जब हमने परचेज करी होती है। जब हम परचेज करते हैं तो हमने एंट्री क्या करी थी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। इसका जस्ट अपोजिट हम कर देंगे परचेज रिटर्न में। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, वो वहां क्रेडिट हुआ था। इनपुट अकाउंट, इनपुट जीएसटी अकाउंट वहां डेबिट हुआ था, यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। और परचेज अकाउंट वहां डेबिट हुआ था तो यहाँ पे परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जस्ट अपोजिट एंट्री पास कर, ठीक है, सेम। बट ये याद रखना है यहाँ पे इनपुट क्रेडिट हो जा रहा है, राइट, क्योंकि वहां पे हमने उसे डेबिट कर दिया। तो सेम अमाउंट से जितना के भी आप गुड रिटर्न कर रहे हैं उतने अमाउंट से आप उसे क्रेडिट कर देते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट है तो बिल्कुल जो आपने वहां करी थी उसकी अपोजिट कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमने करा परचेज अकाउंट को डेबिट, इनपुट को डेबिट और क्रेडिटर को क्रेडिट। तो अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम क्रेडिटर को डेबिट कर देंगे, इनपुट को क्रेडिट कर देंगे, और परचेज रिटर्न को क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया। परचेज की जगह परचेज रिटर्न अकाउंट कर जाता है। क्लियर है, जस्ट अपोजिट एंट्री पास कर देनी है। और बाकी हम अमाउंट अभी एक आगे एग्जाम्पल से सीखें। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न की एंट्री भी जस्ट अपोजिट हो जाएगी। सेल की एंट्री क्या करी थी हमने, डेटर अकाउंट डेबिट किया था तो डेटर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया था, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दिया। आउटपुट को क्रेडिट किया था तो यहाँ पे डेबिट, जस्ट हमने अपोजिट एंट्री पास कर दी। सेम यहाँ पे जो आपने सेल के समय पे एंट्री करी थी उसकी अपोजिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा सेम अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट, अब सपोज हमने पढ़ा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो सर्विस पे भी लगता है ये, गुड्स परचेज करे उसकी हमने एंट्री समझ लिया। मान लो आप कोई सर्विस दे रहे हो, उसके बदले आप कुछ एक्सपेंस के पे कर रहे हो, सपोज आप टेलीफोन चार्जेस पे कर रहे हो, या फिर आप कोई भी एक्सपेंस के लिए रेंट पे कर रहे हो, तो उस पे भी जीएसटी लगता है। समझेंगे कैसे, जैसे आपने परचेज की एंट्री करी थी ना, सिमिलर एंट्री है, बस परचेज की जगह एक्सपेंस अकाउंट आ जाए। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हुआ, इनपुट क्योंकि आप पे कर रहे हो जीएसटी तो जीएसटी अमाउंट डेबिट हो गया, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, और आपके पास से कैश और या बैंक जिससे भी आप पेमेंट कर रहे हैं वो जा रहा है तो इसलिए वो क्रेडिट हो गया। और अगर इंटरस्टेट है तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश।
क्लियर? जब दो स्टेट में है तो आईजीएसटी को लेगा। एक्सपेंस डेबिट होगा क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। आईजीएसटी ये आपके लिए असेट अकाउंट है। इनपुट आईजीएसटी क्योंकि आपने जीएसटी पे करा है एंड कैश आपकी जेब से जा रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट एंट्री सपोज आपने कोई चैरिटी करी या फिर आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए या फिर आप प्रमोशन में गुड्स दे रहे हो। आपने कुछ गुड्स परचेज करे थे, ठीक है? उस गुड परचेज अब हम चैरिटी में क्या दे रहे हैं, जो हमने गुड्स परचेज करे थे जिसपे हमने कुछ जीएसटी भी पे किया होगा, उस गुड्स को मैं चैरिटी में पे दे रही हूँ, राइट? तो अब हम एंट्री क्या करेंगे? जब हमने गुड्स परचेज करे थे तो हमने एंट्री क्या करी थी? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, राइट? अब जब हम इन गुड्स को क्या कर रहे हैं, आगे चैरिटी में दे रहे हैं या फिर ये मेरे गुड डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? जो परचेज अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा और इनपुट जीएसटी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट क्या होगा? अगर चैरिटी में दे रहे हो तो चैरिटी डेबिट हो जाएगी। फायर से आपका लॉस हो रहा है तो लॉस बाय फायर डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये हमारे लिए लॉस अकाउंट है, लॉस अकाउंट डेबिट होता है। अगर आप प्रमोशन में आगे दे रहे हैं तो एडवर्टीजमेंट सेल्स प्रमोशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? और सिमिलरली अगर आप आईजीएसटी पे आपने परचेज किया था, सपोज आपने इंटरेस्ट रेट किया था, चैरिटी हो रही है, तो एंट्री क्या होगी? परचेज को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि तब हमने डेबिट किया था, उन्हीं गुड्स को अब हम क्या कर रहे हैं? आगे चैरिटी में दे रहे हैं। इनपुट आईजीएसटी भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वो गुड्स पे जो हमने जीएसटी डेबिट कर दिया था अब उसको कैंसिल आउट करना है, तो हमने आईजीएसटी को क्या कर दिया? वापस से इनपुट आईजीएसटी को क्रेडिट कर दिया। और जो हमने चैरिटी में, अगर चैरिटी में दे रहे हैं गुड्स को, तो चैरिटी डेबिट, लॉस बाय फायर डेबिट एंड थेफ्ट डेबिट। क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू एन एग्जांपल। अब एक एग्जांपल देखते हैं, इस एग्जांपल से समझेंगे हम अपने क्वेश्चन को। ठीक है, सो पहला हमारा क्वेश्चन है, एंट्री रीड करेंगे, परचेज गुड्स 5 लाख रुपीज फ्रॉम मेहता ब्रदर्स। आपने मेहता ब्रदर्स से 5 लाख के गुड्स परचेज करे। नीचे हमें गिवन है, सब पे क्या है? सीजीएसटी है, मतलब ये कौन सी है? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, ओके, लेट मी टेक आउट अ पेन फॉर यू एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, ओके गाइस, सो देखेंगे परचेज गुड्स अकाउंट, परचेज करे आपने 5 लाख के गुड्स परचेज करे, तो एंट्री क्या होगी? हमने देखी थी, परचेज अकाउंट डेबिट होगा, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा हमारा? मेहता ब्रदर्स हमारे क्रेडिट हो जाएंगे, राइट? तो एंट्री में अमाउंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? परचेज में डालेंगे आप 5 लाख के, अगर आपने गुड्स परचेज करे हैं तो 5 लाख अमाउंट परचेज में जाएगा। जीएसटी में कितना जाएगा? 5 लाख का आपने 9% निकालेंगे, 5 लाख का 9% कितना आया? 45,000। 45,000 दोनों में ईच, 9% ईच है, तो सीजीएसटी में भी 45,000 इनपुट, एसजीएसटी में भी 45,000। और मेहता ब्रदर्स को अब आपको कितना अमाउंट पे करना है? यहाँ पे कैश में ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है तो मेहता ब्रदर खुल गया। ठीक है, आपने अभी अमाउंट पे नहीं करा है तो कितना अमाउंट पे करना है आपको? एक तो 5 लाख रुपीज परचेज के पे करने हैं, जीएसटी के अमाउंट 45,000 पे करना है, तो कितना अमाउंट टोटल पे करना है? 5,90,000। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट एंट्री क्या है? सेल करिए। अब हमने सेल करी है, जब हम सेल करते हैं तो सेल की एंट्री क्या पास होती है? आपने सेल करे हैं गुड्स, किसको? मुंजल कंपनी को, तो मुंजल कंपनी हो जाएगी, ये आपका डेटर बन गया, डेटर अकाउंट को डेबिट कर देंगे, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? जीएसटी को कलेक्ट कर रहे हैं। जब जीएसटी कलेक्ट करते हैं तो लाइबिलिटी है, क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कैसे डालेंगे? देखिए, वहां पे आपने परचेज में 5 लाख डाला था तो यहाँ पे सेल में 8 लाख डल जाएगा। सबसे पहले सेल में 8 लाख डाल दिया, 9% निकाले 8 लाख का, 8 लाख का 9% कितना आया? 72,000। 72,000 आ गया और आपको अब मुंजल कंपनी से कितना पैसा लेना है? 8 लाख रुपीज लेने हैं सेल्स के और आउटपुट के। आपके जीएसटी एसजीएसटी दोनों के 72,000 मिला के कितना हो गया? 9,44,000 आपको उससे लेने हैं, तो वो आपका डेटर अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट, अब है हमारी एक्सपेंस की एंट्री, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट 40,000 बाय चेक। अब आपने एडवर्टीजमेंट के पैसे पे कर रहे हैं आप 40,000 रुपीज, ठीक है? ओके, तो एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस के समय पे एंट्री क्या होती है? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आप पे कर दे रहे हैं तो बैंक अकाउंट हो गया। इनकेस आप चलो अभी हम इसी से समझते हैं, आपने पे कर दिया तो आपका बैंक अकाउंट हो गया। एडवर्टीजमेंट का कितना पैसा है? 40,000, तो 40,000 डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट में आ गया।
जीएसटी पे 9% निकाला आपने, 40,000 का 9%, 3,600 दोनों में आ गया। अब आपने कितना पैसा पे करा कुल, 47,200, तीनों का टोटल कर दोगे 47,200 रुपीज आपने अमाउंट को पे कर दिया। क्लियर है एवरीवन? ओके। नेक्स्ट, अब आपने फर्नीचर परचेज किया है। जब आप फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो बस परचेज की जगह फर्नीचर अकाउंट आ जाएगा, सेम एंट्री होगी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी टू बैंक। फर्नीचर में अमाउंट किया 50,000, एसजीएसटी सीजीएसटी में 9% निकाला 45,000 का, 4,500, बैंक में टोटल आ जाएगा पूरा जितना आप पे कर रहे हैं 59,000। क्योंकि ये हमने क्या बोला है, चेक में पे कर दिया तो बैंक हमने क्रेडिट किया है, यहाँ पे हमने कोई भी हमारा क्रेडिटर अकाउंट ओपन नहीं किया। क्लियर? ओके। लास्ट एंट्री मैंने आप लोगों के लिए छोड़ी है, आप लोग इस एंट्री को करेंगे। ओके एवरीवन? ओके, suppose now I'm hoping everyone you're clear with this. Okay, next, अब सीखते हैं जीएसटी हम सेट ऑफ कैसे करते हैं, जीएसटी की हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। आपने कुछ जीएसटी गवर्नमेंट से कलेक्ट किया है, कुछ जीएसटी आपने गवर्नमेंट को पे किया है, दोनों चीजें की है हमने, राइट? तो इस केस में क्या होगा, अब हम सेट ऑफ कैसे करेंगे। अगर आपके पास, ध्यान रखना है सबसे पहले, इनपुट जीएसटी कौन सा है, जो आपने जीएसटी पे कर दिया है ऑलरेडी। आउटपुट जीएसटी कौन सा है, जो जीएसटी आपने कलेक्ट करा है। अगर आपने कुछ जीएसटी पे कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है, तो अब आपने जो कलेक्ट किया है, कलेक्ट वाले में से, आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी को माइनस करेंगे तो हमारे पास कौन सा अमाउंट आएगा जो हमें अभी गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, तो हम इसे कैसे सेट ऑफ करते हैं, कैसे इसको कैंसिल आउट करते हैं, इसका मेथड समझेंगे। यहाँ पे मैंने एक टेबल ऐड किया है, आपके पास जो बैलेंस है आप अलग अलग निकाल लेंगे। इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस अलग, इनपुट सीजीएसटी का अलग, इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस अलग, तीनों का अलग अलग निकाल लिया। सिमिलरली आउटपुट का भी अलग अलग निकाल लिया। ठीक है, तो इनपुट आईजीएसटी को सबसे पहले उठाते हैं। सबसे पहले हम इनपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ करेंगे, जो सीक्वेंस है इसी सीक्वेंस में सेट ऑफ करेंगे। आप देखते हैं, इनपुट आईजीएसटी में बैलेंस, आपका जो भी बैलेंस होगा सबसे पहले उसको किसमें से माइनस करेंगे, आउटपुट आईजीएसटी में। इनपुट आईजीएसटी सबसे पहले माइनस होगा आउटपुट आईजीएसटी में से, और फिर उसके बाद अगर बैलेंस बच गया तो हम किस में से माइनस करेंगे। अगर आपका सेट ऑफ, मतलब इनपुट में अगर अभी भी अमाउंट ज्यादा है आईजीएसटी से माइनस करने के बाद, तो आप बचा हुआ माइनस किससे कर देंगे, सीजीएसटी से। और सीजीएसटी से करने के बाद भी अगर अभी अमाउंट कुछ बच जाए तो आप उसे एसजीएसटी से माइनस करें। ठीक है, अभी एग्जाम्पल से समझेंगे। और नेक्स्ट फिर आते हैं, जब ये सेट ऑफ पूरा हो गया, पूरा माइनस हो गया आपका इनपुट, फिर हम आते हैं इनपुट सीजीएसटी। अब सीजीएसटी को ध्यान रखना है, देखो आईजीएसटी तो तीनों से सेट ऑफ हो रहा है, आईजीएसटी से भी, सीजीएसटी से भी, एसजीएसटी से। लेकिन जो सीजीएसटी है वो सिर्फ किससे सेट ऑफ होगा, पहले तो सीजीएसटी से, सबसे पहले सीजीएसटी। आईजीएसटी भी सबसे पहले आईजीएसटी से था, सीजीएसटी भी सबसे पहले सीजीएसटी से होगा। उसके बाद अगर बच गया तो आईजीएसटी से होगा, लेकिन ये कभी भी सीजीएसटी से नहीं। ठीक है, ओके। सिमिलर विद दी एसजीएसटी, एसजीएसटी भी सबसे पहले एसजीएसटी से होगा, और अगर बैलेंस बच गया तो आउटपुट आईजीएसटी से माइनस कर देंगे, लेकिन ये भी कभी भी सीजीएसटी से माइनस नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? एक बार और रिपीट कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए, आईजीएसटी जो है हमारा, वो हमारा दोनों से सेटअप हो, तीनों से हो जाएगा, आईजीएसटी से भी हो जाएगा, एसजीएसटी से भी हो जाएगा, और सीजीएसटी से भी हो जाएगा। ठीक है, और वहीं जो हमारा सीजीएसटी इनपुट है वो हमारा सबसे पहले सीजीएसटी से होगा, अगर बैलेंस बच गया तो आईजीएसटी से होगा। नेक्स्ट, सेम विद एसजीएसटी, सबसे पहले इनपुट एसजीएसटी किससे सेट ऑफ होगा, एसजीएसटी से सेट ऑफ होगा, और अगर बैलेंस बच गया तो फिर आईजीएसटी से सेट ऑफ हो। क्लियर है? ठीक है, तो अब समझते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल पे जाते हैं। मैंने आप लोगों के लिए 2 एग्जाम्पल ऐड करे हैं इसमें। पहला एग्जाम्पल है रोहित। रोहित के पास ये जीएसटी के बैलेंस है। एक तो आपने जब जनरल एंट्री पास करेंगे तो जनरल एंट्री पास करने के बाद आप कैलकुलेट करेंगे खुद ही बैलेंस। यहाँ पे मैंने आपको बैलेंस दे दिया डायरेक्ट। इनपुट जीएसटी आपने कितना पे कर रखा है, इनपुट आईजीएसटी आपने पे कर रखा है 6 लाख, इनपुट सीजीएसटी आपने पे कर रखा है 2 लाख, इनपुट एसजीएसटी आपने पे कर रखा है 2 लाख, और आपने कलेक्ट कितना कर रखा है, आउटपुट आईजीएसटी आपने 5 लाख कलेक्ट कर रखा है, आउटपुट सीजीएसटी आपने 1,50,000 कलेक्ट कर रखा है, और एसजीएसटी 1,50,000।
तो सबसे पहले हम किसको सेटअप करते हैं, हमने सीक्वेंस देखी थी आईजीएसटी, ठीक है। आईजीएसटी को सेटअप करना है, आईजीएसटी को आउटपुट सबसे पहले आउटपुट से करेंगे, तो हमारे को सेटअप करना है 60,000, लेकिन मेरे पास आउटपुट में कितना बैलेंस है 5 लाख, तो मैं 5 लाख ही कर पाऊंगी। तो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जब सेटअप कर रहे हैं तो कैंसिल आउट कर रहे हैं, जब आपने कलेक्ट किया था तो उसे क्रेडिट किया था, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, इनपुट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। आउटपुट आईजीएसटी 5 लाख से डेबिट हो गया और इनपुट आईजीएसटी 5 लाख से क्रेडिट हो गया। तो हमारे पास जो इनपुट आईजीएसटी में बैलेंस था 6 लाख का, उसमें से 5 लाख मैंने सेट ऑफ कर दिया, 1 लाख और बच गया, तो वो 1 लाख मैं किससे कर दूंगी, इनपुट आईजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी से कर दूंगी, ठीक है। आउटपुट सीजीएसटी में 1,50,000 का बैलेंस है, तो 1 लाख मैंने यहाँ से ले लिया, आउटपुट सीजीएसटी 1 लाख और इनपुट आईजीएसटी 1 लाख। तो अब मेरा इनपुट आईजीएसटी पूरा सेटअप हो गया 6 लाख, 5 लाख यहाँ और 1 लाख, ठीक है। उसमें से मैंने 5 लाख बैलेंस आउटपुट आईजीएसटी से लिया और 1 लाख बैलेंस मैंने सीजीएसटी से। अब आगे आते हैं नेक्स्ट में, अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास सीजीएसटी की एंट्री है, ठीक है। सीजीएसटी मैं किससे सेटअप कर सकती हूँ, सीजीएसटी में मेरे को 2 लाख सेटअप करना है, लेकिन मेरे पास आउटपुट आईजीएसटी में कितना बैलेंस बचा है, सिर्फ 50,000 का बैलेंस बचा है। 1 लाख तो मैंने यहाँ यूज कर लिया, इधर यूज कर लिया है ना, तो सिर्फ 50,000 का बैलेंस बचा है, तो आउटपुट सीजीएसटी कितना सेटअप हो जाएगा, 50,000 से इनपुट सीजीएसटी 50,000 और आउटपुट सीजीएसटी डेबिट होगा 50,000, इनपुट सीजीएसटी क्रेडिट होगा 50,000, ठीक है। तो अभी मेरा यहाँ पे 1,50,000 का बैलेंस बच गया। ये मतलब कौन सा अमाउंट है जो मैं ऑलरेडी एक्स्ट्रा पे कर चुकी हूँ, तो ये मेरा रिसीवेबल अमाउंट है। नीचे नोट में जाएंगे, देखेंगे क्या लिखा है मैंने, इनपुट सीजीएसटी 1,50,000 रिसीवेबल अमाउंट है, ये आप एक्स्ट्रा पे कर चुके हैं, तो ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एसडीएसटी पे आते हैं। अब एसडीएसटी में आउटपुट में पूरा बैलेंस है 1,50,000 और एसडीएसटी को कितना इनपुट मेरे को सेटअप करना है 2 लाख, लेकिन 2 लाख तो आउटपुट में बैलेंस ही नहीं है, तो 1,50,000 सेटअप कर देंगे। बाकी बचा जो 50,000 है यहाँ पे भी बैलेंस, वो भी एक्स्ट्रा पे कर चुके हैं, तो वो भी रिसीवेबल में आ जाएगा। क्लियर, ओके। सबसे पहले आईजीएसटी को सेटअप किया 5 लाख, 5 लाख इनपुट आईजीएसटी 5 लाख इनपुट, आउटपुट आईजीएसटी से सेटअप हो गया। अभी भी 1 लाख का बैलेंस बचा था, वो हमने सीजीएसटी से ले लिया, सीजीएसटी से सेटअप कर दिया। अब आउटपुट सीजीएसटी में सिर्फ 50,000 का बैलेंस बचा था, तो इनपुट सीजीएसटी से 50,000 ही सेट ऑफ हो पाया, क्योंकि ये तो सिर्फ आईजीएसटी और सीजीएसटी से होता है, इसका भी बैलेंस खत्म हो गया, इसका भी खत्म हो गया, तो सिर्फ 50 सेट ऑफ हो पाया। 1,50,000 ये मेरा एक्स्ट्रा अमाउंट पेबल में आ गया। फिर एसजीएसटी में भी सिर्फ 1,50,000 ही आउटपुट में बैलेंस था, तो 1,50,000 सेट ऑफ कर दिया, 50,000 जो है एक्स्ट्रा हमारा पेबल अमाउंट में आ गया। क्लियर। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे, एक और देखते हैं। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए जरा, यहाँ पे हमारा आउटपुट का बैलेंस ज्यादा है, आउटपुट में 4 लाख रुपीज बैलेंस है, इनपुट में 250, मतलब मैंने पे से 250 किया है, कलेक्ट मैंने 4 लाख कर रखा है, ठीक है। तो जितना मैंने पहले पे कर दिया उसको माइनस कर देंगे, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी 250 मेरा पूरा सेटअप हो गया, इनपुट आईजीएसटी पूरा सेटअप हो गया। नेक्स्ट अब सीजीएसटी सेटअप करें, ठीक है। सीजीएसटी में 2 लाख सेटअप करना है, तो 2 लाख में से इनपुट सीजीएसटी में क्रेडिट कितना किया 2 लाख, उसमें से 1,50,000 तो सीजीएसटी से ही ले लिया, ठीक है। सबसे पहले सीक्वेंस क्या थी, सीजीएसटी सीजीएसटी से जाएगा, तो सीजीएसटी में 1,50,000 सबसे पहले सीजीएसटी से लिया। अब जो बैलेंस बच गया मेरे पास आउटपुट आईजीएसटी में भी बैलेंस देखो कितना बचा था, 2,50,000 वहां यूज किया था, 4 लाख का बैलेंस है, कितना बच गया 1,50,000 वहां बचा था, तो उसमें से 50,000 मैंने यहाँ यूज कर दिया। क्लियर, तो 50,000 यहाँ यूज हो गया, एंट्री क्या हो गई, आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी टू इनपुट सीजीएसटी। 1,50,000 हमने सीजीएसटी से ही सेटअप किया, बाकी बचा बैलेंस जो है वो हमने आईजीएसटी से सेटअप कर दिया। क्लियर। अब आते हैं एसजीएसटी पे, सेम एसजीएसटी में भी हम क्या करेंगे, 1,50,000 तो आउटपुट एसजीएसटी से सेटअप कर लिया, और बाकी जो बचा था 50,000 वो आपने आईजीएसटी से ले लिया, सॉरी ये आईजीएसटी आएगा यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे एंट्री में। नेक्स्ट अब आपके पास ध्यान से देखेंगे, आपका 4 लाख का आईजीएसटी का बैलेंस, 2,50,000 आपने आईजीएसटी को सेटअप करने में ले लिया, 50,000 यहाँ ले लिया, 50,000 यहाँ ले लिया, अभी भी आपके पास 50,000 का बैलेंस बच गया, राइट। 4 लाख में से 2,50,000 माइनस किया 1,50,000, फिर 50 और माइनस किया सीजीएसटी का, और क्या आ गया 1 लाख, 1 लाख में से फिर 50,000 माइनस किया, कितना बच गया, अभी भी 50,000 का जीएसटी है जो मैंने एक्स्ट्रा कलेक्ट कर रखा है। अगर एक्स्ट्रा कलेक्टेड है, आउटपुट में एक्स्ट्रा बैलेंस होता है, तो वो गवर्नमेंट को पे करना होता है, तो एंट्री क्या हो गई, आउटपुट
IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000 रुपीज, ये हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया। अगर आउटपुट में बैलेंस एक्स्ट्रा बचता है तो वो हम गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। अगर इनपुट में एक्स्ट्रा बचा है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो ये ऑलरेडी आपने एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर दिया है, ये रिसीवेबल में आ जाता है। क्लियर? आई होप द क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। और इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन बिलो। All the best, students. This is it for today's class. Thank you, everyone.